Question number 21. Complete the missing components or variables given as x and y in the following reaction. ओके सो फ्रेंड, हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन में कुछ मिसिंग वेरिएबल्स है जो कि डिनोट किया गया है x और y। हमें यहाँ पे क्या आ सकता है करेक्ट आंसर, ये फाइंड आउट करना है, मिसिंग कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ए। लीड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 ट्वाइस plus potassium iodide that is 2Ki gives PbI2 that is lead iodide and 2KNO3 that is potassium nitrate. So this is the example of double displacement reaction. Now we will study this reaction. So friend, if you observe carefully in this reaction, lead nitrate aqueous solution reacted with the potassium iodide and the lead iodide is formed. So friend, lead iodide is a precipitate and therefore it must be in the solid state. Okay, so therefore in place of variable x we will write the state of the lead iodide, that is the small s solid state. Also the second product which is formed in this reaction, that is potassium nitrate, is in aqueous format. So therefore in place of variable y we will write AQ. Equation number B. Copper get reacted with the silver nitrate to form copper nitrate aqueous solution, and we have to identify the missing component which is denoted by X. So friend, if you observe this reaction carefully, you will notice that this is the displacement reaction. In this reaction, copper displaces the silver from its solution, aqueous solution, and copper nitrate is formed. So hence it is a type of displacement reaction. So there must be silver in place of X. So in place of variable X we will write silver. And as we always write the reaction in balanced format, so as in on the left hand side, means toward the reactant side, there is coefficient 2 with the silver, hence we will write also 2 Eg. Question number 21, sub question C. Zinc reacted with H2SO4, that is sulfuric acid, to form zinc sulfate plus hydrogen. So friend, whenever any metal reacts with acid, hydrogen gas is formed. So the hydrogen liberated in this reaction is in gaseous format. So in place of Y we will write G. Also the zinc sulfate form must be in aqueous state. So therefore in place of variable X we will write AQ, that is zinc sulfate which is formed in this reaction is in aqueous state. Question number 21, sub question D. CaCO3, that is calcium carbonate, gives CaO, that is calcium oxide, plus CO2 gas, that is carbon dioxide gas. So friend, this is the decomposition of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide gas. So whenever there is a decomposition of any reactant, there must be some kind of energy have to be supplied, and for the decomposition of calcium carbonate we always supplied the heat. Heat should be supplied because it is a thermal decomposition process. So in place of variable X we will write heat because this is a kind of thermal decomposition reaction. Question number 22. Which among the following changes are exothermic or endothermic in nature? Okay, so friends, in this question we are given some changes, some reactions, and we have to identify that which of the changes are exothermic and which of the changes are endothermic. So before starting the solution of this question, first of all we will discuss the definition of both the changes. So friend, exothermic change, okay, the change in which heat is evolved, heat is liberated, that change is called as exothermic change. And endothermic change, the change in which heat have to be supplied or the change in which heat is absorbed, that is called as endothermic reaction or endothermic change. So let's have a look towards the option. Option number A, decomposition of ferrous sulfate. So friend, whenever there is a decomposition of any substance into multiple product, so in this reaction heat should be supplied. इस reaction में heat हमें supply करनी पड़ती है.
सो यह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड थिंग, डायल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो फ्रेंड, किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस को जब हम पानी के साथ में डाइल्यूट करते हैं, इफ यू डाइल्यूट एसिड और बेस विथ वाटर, then in this reaction large amount of heat is liberated, so it is a exothermic reaction. So dilution of sulfuric acid is exothermic reaction. Third, dissolution of sodium hydroxide in water. So friend, sodium hydroxide is a base, और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी एसिड और बेस को जब हम पानी में ऐड करते हैं तो वह उस समय में हीट लिबरेट होती है, सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। सो फ्रेंड, कोई भी जब सॉल्ट पानी के साथ में हम लोग ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो उस समय में हीट एब्जॉर्ब होती है, सो इट इज अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो आवर फाइनल आंसर विल बी डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर डी in water are endothermic reaction because heat is absorbed in these changes. And dilution of sulfuric acid and dissolution of sodium hydroxide in water are exothermic reaction because heat is released in this reaction. Question number 23. Identify the reducing agent in the following reaction. Okay, so friend, हमें यहाँ पे कुछ reaction दी गई है और हमें इन रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है रिड्यूसिंग एजेंट को। तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। सो फ्रेंड, द सब्सटेंस विच हैव द एबिलिटी ऑफ एडिंग हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस, इट इज नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। सो फ्रेंड, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो अदर सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड करता है या फिर अदर सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सी इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट द सब्सटेंस विच हेल्प अदर सब्सटेंस टू रिड्यूस, जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस होने के लिए हेल्प करता है, उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए देखते हैं रिएक्शंस क्या कह दी गई है। रिएक्शन ए, 4NH3 दैट इज अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दैट इज 5O2 गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल दैट इज द 6H2O। अभी इस रिएक्शन में दिस अमोनिया एड्स हाइड्रोजन इन द ऑक्सीजन, ओके, देयरफॉर वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म। सो इस रिएक्शन में अमोनिया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में ऐड कर रहा है, इसी की वजह से इस अमोनिया को कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सो द आंसर ऑफ ए विल बी द अमोनिया, दैट इज अमोनिया इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन रिएक्शन ए। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन बी। H2O दैट इज वाटर प्लस फ्लोरीन दैट इज F2 गिव्स HF हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस HOF। तो अभी इस रिएक्शन में अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ऐड कर रहा है हाइड्रोजन फ्लोरीन में, इसी के वजह से फॉर्म हो रहा है HF। सो इसी के वजह से वाटर मॉलिक्यूल को कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन बी विल बी वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन नंबर सी, Fe2O3 that is iron oxide plus 3CO that is carbon monoxide gives 3Fe iron plus 3CO2 that is the carbon dioxide। अभी हम लोग इस रिएक्शन को ठीक से अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे, सो वो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, जिसकी वजह से अभी बाकी रह रहा है यहाँ पे सिर्फ Fe दैट इज आयरन। सो इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड ने दूसरे रिएक्टेंट का ऑक्सीजन को रिमूव किया है, इसी के वजह से उसे कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सो देयरफॉर कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। रिएक्शन नंबर डी, 2H2 plus O2 gives 2H2O। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। सो फ्रेंड, अभी इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन गैस है वो ऐड हो रहा है ऑक्सीजन में, कि जिसके वजह से फॉर्म हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल। सो इसी की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है रिड्यूस, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। सो ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प की यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ने, तो इसी की वजह से हाइड्रोजन गैस को कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर डी इज हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 24,
आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ रिएक्शंस दी गई है और हमें उस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं। सो फ्रेंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच एड्स ऑक्सीजन और विच रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस कि जो अदर सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करता है या दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, उस सब्सटेंस को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए देखते हैं रिएक्शंस क्या क्या दी गई है। सबसे पहले रिएक्शन ए, Pb3O4 that is lead oxide plus 8HCl that is hydrochloric acid gives PbCl2 that is lead chloride plus chlorine gas Cl2 plus 4H2O। सो फ्रेंड, इस रिएक्शन को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो हमें यह यहाँ पे दिखता है कि ये जो लीड ऑक्साइड है, इस लीड ऑक्साइड से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल। तो इस लीड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को दिया है हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने के लिए, सो लीड ऑक्साइड को कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो देयरफॉर द आंसर ऑफ ए विल बी Pb3O4 दैट इज लीड ऑक्साइड, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को ऐड किया है हाइड्रोजन में। ठीक है। बी, रिएक्शन बी, 2Mg plus O2 gives MgO। सो फ्रेंड, मैग्नीशियम रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में और फॉर्म हो रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी इस रिएक्शन को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है मैग्नीशियम में, जिसकी वजह से फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम को हेल्प की उसका ऑक्साइड फॉर्म होने के लिए या फिर उसमें ऑक्सीजन ऐड करने के लिए, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो द आंसर ऑफ बी विल बी O2 दैट इज ऑक्सीजन। नंबर सी, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट get reacted with zinc and it gives copper plus zinc sulfate। ओके, सो फ्रेंड, इस रिएक्शन में जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये जो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर सल्फेट ऐड कर रहा है ऑक्सीजन जिंक में, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जिंक SO4। सो जैसे कि इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट ने ऑक्सीजन दिया है जिंक को, तो इसी की वजह से कॉपर सल्फेट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो द आंसर ऑफ सब क्वेश्चन सी इज कॉपर सल्फेट। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन डी, V2O5 दैट इज वैनेडियम पेंटॉक्साइड reacted with 5Ca that is calcium gives vanadium plus 5CO that is calcium oxide। सो फ्रेंड, अभी इस रिएक्शन को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो ये जो वैनेडियम पेंटॉक्साइड है इसने यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है कैल्शियम को, जिसके वजह से यहाँ पे फॉर्म हो गया है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जैसे कि इस रिएक्शन में वैनेडियम पेंटॉक्साइड ने ऑक्सीजन दिया है तो इसी के वजह से उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो द आंसर ऑफ रिएक्शन डी इज V2O5 दैट इज vanadium pentoxide। Reaction E, 3Fe that is iron get reacted with water that is 4H2O gives Fe3O4 that is iron oxide and hydrogen gas is removed that is 4H2। तो अभी इस रिएक्शन में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उसने दिया है ऑक्सीजन आयरन को, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है आयरन ऑक्साइड। सो वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है ऑक्सीजन आयरन को, तो वाटर मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हमें पता है कि जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन देता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन दिया है आयरन को, इसी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल हो गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो द आंसर ऑफ रिएक्शन ई विल बी H2O दैट इज वाटर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ द लास्ट रिएक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24, रिएक्शन एफ, CuO that is copper oxide plus H2 that is hydrogen gives copper Cu plus H2O that is water molecule। अभी इस रिएक्शन में आप लोग अगर ठीक से देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो दे रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल। सो इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को दे रहा है, इसी की वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा कॉपर oxide। So the answer of reaction F will be copper oxide।